طوفان کراچی کی جانب بڑھنے لگا، شہر میں مزید موسلادھار بارشوں کا خدشہ، اربن فلڈنگ کا خطرہ، شہر میں چلنے والی تیز ہواؤں سے سمندری طوفان کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے۔ شمال مشرقی بحر عرب میں موجود ڈیپ ڈپریشن طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ سمندری طوفان اسنا کراچی کے جنوب مشرق میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ کراچی ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں اور آندھی کا بھی امکان، جبکہ ماہرین موسمیات کے مطابق طوفان سندھ کے ساحلی علاقوں کے قریب سے گزرے گا، بلوچستان کی ساحلی پٹی کی جانب رخ کرے گا۔ جب یہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو گیا تھا، 30 ڈگری سمندر پہ اوپر ٹیمپریچر مل رہا تھا، تو ہم اس وقت ہی سوچ رہے تھے کہ یہ سمندر کی طرف ٹلٹ ہو کے یہ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جو ہے اس کے ساتھ جو ونڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مانسون کے طاقتور اسپیل کی دھواں دھار اننگز جاری، مختلف شہروں میں آج بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، انتظامیہ کے تمام تر دعوے پانی میں بہہ گئے۔ متعدد علاقوں میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی جمع، لیاقت آباد، نیو کراچی، 13 ڈی گلشن اقبال یونیورسٹی پر پانی جمع، شہر کے مختلف مقامات پر سیوریج لائنیں بھی دھس گئیں، گٹر ابل پڑے، سندھ سیکریٹریٹ، گلشن اقبال، 13 ڈی اور کسٹم ہاؤس پر تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، شہری سخت ذہنی اذیت میں مبتلا، کہتے ہیں گڑھے میں کراچی میں ہیں یا کراچی گڑھوں میں ہیں، شہری حکومت تو سو رہی ہے۔ یہاں کے بیرسٹر مرتضیٰ وہاں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، پیرس تو کیا ہے تو لائن ایئر سے بدتر رہی ہے، یہ مونجی دوڑوں کر وہ پیش کر رہا ہے۔ بیکار ہے سر، یہ ہمارے جو میئر صاحب بیٹھے ہیں کسی کام کے نہیں ہے سر۔ کراچی میں گڈھے نہیں ہے، گڈھے میں کراچی ہوا ہے۔ ابھی 10 نمبر پہ گر گیا تھا رکشا پانی میں، گڈھے میں گر گیا تھا، نکلوایا لڑکوں نے۔ شہر میں بارش کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا دعویٰ، مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد گفتگو میں کہا بارش سے شہر کی سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، بارش رکتے ہی سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ میں حالیہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ پیپلز پارٹی فوٹو سیشن اور مسائل کے عارضی ریلیف پر یقین نہیں رکھتی، ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نسلوں کو فائدہ ہو۔ ملک بھر میں جاری بارشوں سے تباہی، سندھ میں بھی طوفانی بارشیں، کئی شہر ڈوب گئے۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، سنجاول اور میرپور خاص میں بارش نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا، کئی اہم شاہراہیں اور اندرونی گلیاں پانی کی نظر، نشیبی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ مٹیاری میں دریائے سندھ سے آئے ریلوں نے درجنوں کچے مکانات اور فصلیں تباہ کر دیں۔ پنجاب کے کئی شہر بھی پانی میں ڈوب گئے، پنڈادن خان، کھیوڑا اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، جہلم میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں طغیانی، تحصیل سہاوا کے دیہی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، خضدار میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، وٹ خرق، باغبانہ اور نال تحصیلوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دیر میں سیلابی ریلیں سڑکیں بہا لے گئے، کمراٹ سمیت مختلف سیاحتی مقامات پر درجنوں سیاح پھنس گئے۔ تل سے لے کے کمراٹ اور تل سے لے کے پتراٹ تک جو سڑک ہے، کوئی 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر کی سڑک ہے، وہ جگہ جگہ سے پانی کی نظر ہو چکی ہے۔ وہ سڑک اسپیشلی کمراٹ اور تل کے درمیان تو کئی جگہوں پہ جو سڑک ہے اس کا صفحہ ہستی سے وہ سڑک مل چکی ہے۔ ہم یہاں ٹورسٹ ہیں اور راستہ پیچھے کمراٹ کی طرف بھی بند ہے اور واپس جانے کا راستہ بھی بند ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کچھ پتہ چلا ہے کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ دیر بالا میں شدید بارش کے باعث 14 مکان فرا گرا، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد جان سے گئے۔ خیرپور کے شہر فیض گنج میں اسکول کی چھت کا پلستر گرنے سے 9 طلبہ زخمی، میرپور خاص میں بارش کے پانی میں ڈوب کر ایک شخص جان سے گیا، جبکہ مظفر گڑھ میں دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ صادق آباد میں کچے مکانات کی چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں 4 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ لوڑا لائی میں تورخیزی ڈیم میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو بچا لیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے تباہی، بولان سے کوئٹہ آنے والی سوئی گیس کی 18 انچ قطر کی پائپ لائن بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل، بلوچستان حکومت نے صوبے کے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قلاس، زیارت، صحبت پور، لسبیلا، آواران، کچھی، جعفر آباد، اوسطا محمد، لورا لئی اور چاغی آفت زدہ اضلاع میں شامل۔ عمرکوٹ میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، سینکڑوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ و برباد، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی، متاثرین کی دہائی۔ ایکشن آرمی کے افسر اور جوان دن رات
इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं का 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा किया गया। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में ऑपरेशन की तरदीद। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत को ना मानने वाले दहशतगर्द हैं। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। हम सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। अफगान हुकूमत के दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही से खित्ते के अमन को खतरा। अफगान अबूरी हुकूमत खवारिज के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में मुकम्मल नाकाम। रियासत पाकिस्तान की जानिब से बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को इन नाकाबिले तरदीद शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन से फितना अल खवारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा। पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए दरवाजे बंद। बानी PTI ने 2 टोक फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वाज़ेह कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखी। जनाब स्पीकर, आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वाज़ेह ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई हैं। कभी ये स्ट्रेचर पर और कभी व्हील चेयर पर चीखे मारते हैं। जब रसीदें दिखाने का कहो तो ये चीखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के रिहाइश गाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत के पास करने के लिए कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, कोयटा के रेड जोन में इजलास करते हैं, चमन और लोरा लई जाकर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए। ये केसेस जब भी अदालतों में आएंगे खत्म होंगे। इनको इनके बच्चे भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं। 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है, तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। आज भी कोई तफ्तीशी अफसर बानी PTI के सेल में चला जाए तो कोकीन और हीरोइन भी मिलेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का बड़ा इल्जाम। जेल में बानी PTI को मुयस्सर सहूलियात पर सवालात उठा दिए। कहा ये किसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी भी मिल रही है, मक्खन भी है, 90 मीटर का लंबा सेल भी है। पाकिस्तान की तमाम जेलों में कैदियों को वो
सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी PTI को मुयस्सर हैं। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के मंशा से मुतल्लिक अल्फाज कार्रवाई से हज़्फ करा दिए। वो जो जेल के ये मैं जनाब स्पीकर, वो जो जेल के अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, उसको एक्सपंज कर रहा हूँ। हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। IPPs करप्शन की कहानी है, कौम के पैसे लूटे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के फेज 2 का आगाज कर रहे हैं। मुल्कगीर हड़ताल का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। सिंध हुकूमत ने भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना शुरू कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन ने कहा, हमने KMC का टैक्स बिजली के बिलों से वसूल करना रोक दिया। हमने पहले फेज में 6000 लोगों में सोलर तकसीम करने हैं। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज, दोबारा गिनती में NA79 गोजरावाला की नशिस्त भी हाथ से गई। नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद 95,604 वोट लेकर कामयाब करार। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार एहसानुल्लाह वर्क ने 92,581 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद लीगी उम्मीदवार को फातेह करार दिया। इराक से कराची आने वाली गैर मुल्की परवाज 40 घंटे ताखीर का शिकार। एयरलाइन के रवैये पर पाकिस्तानी मुसाफिरों का बगदाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिर कहते हैं 2 दिन से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। परवाज से मुतालिक भी अपडेट नहीं किया जा रहा। ज़राए के मुताबिक जहाज में खराबी के बाइस परवाज ताखीर का शिकार हुई। गजा में सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जबालिया में सेहोनी बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 40,602 हो गई। मगरिबी किनारे पर भी सेहोनी जारियत में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहोनी रजीम बड़े सरप्राइज का इंतजार करे, यमनी अफवाज अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के मरकजी रहनुमा का बयान। अब्दुल मलिक ने कहा, गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम मुसलसल भूख और कहत का शिकार है। गजा और मगरबी किनारे पर इजराइल अमरीका गठजोड़ फ़लस्तीन में एक नए जंगी मंजरनामे की तैयारी है। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाइस पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर। मुसलसल बारिश के बाइस पहले रोज का खेल मंसूख कर दिया गया। खराब मौसम के बाइस टॉस भी न हो सका, स्टेडियम में पानी जमा। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। गिनीज रिकॉर्ड ने स्टार फुटबॉलर के चैनल को 24 घंटों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाले चैनल के तौर पर तस्लीम किया। रोनाल्डो के चैनल ने सिर्फ 11 घंटे 31 मिनट में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। उसूर में सूफी बुजुर्ग और शायर बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात का आगाज। अरकान असम्बली की मज़ार पर हाजिरी, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। और मारूफ नातवाल हाथ खुर्शीद अहमद को बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनकी नातें आज भी सुनने वालों को इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार कर देती हैं। मारूफ नात, ये सब तुम्हारा करम है, आका से उन्हें बाहें उरूज मिला।